Here we are having the new topic, the components of the BOP. Yesterday we have studied about the meaning of BOP and BOT. BOP, balance of payment, and BOT, balance of trade. Balance of payment is an account which shows the economic transactions between the country and between the residents of a country and with the rest of the world during a given period of time, generally 1 year. But today we are having the new topic, components of BOP. Components of BOP having two parts, the current account and second is capital account. We are having two accounts. We need to maintain the two accounts. As we have studied about, the BOP is based on double entry system. It means the structure of BOP account having two parts, that is debit side and credit side. Debit side we record all the payment side, all the payments which we pay on behalf of import of goods, and credit side which is receipt side, which we get received from exports of goods. When we export goods we get the payment, and that payment we record in credit side, and payment paid which is recorded on the credit side. Now we are having the current account. Current account is an account which records all the transactions of export and import of goods and services. मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे. करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है उन सभी ट्रांजैक्शंस को, यानी करंट अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शंस ऐड करेंगे जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए हैं. यानी एक चीज तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हम पढ़ चुके हैं. यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक पार्ट में मैंने आपको बताया था, दैट यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आर वन साइड ट्रांजैक्शंस लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड पर्सनल रेमिटेंस. It means current account is an account which records the import and exports of goods and services, unilateral transfers during a period of time, generally 1 year. यानी यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. और अगेन करंट अकाउंट इज ऑल्सो हैविंग टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड द पेमेंट वी पेड and the credit side the payment which we received. Yes, now we are having the components of current account. C for current, A for account. मैंने आपको बता दिया था अभी आपको मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. बीओपी के कंपोनेंट्स में दो चीजें आई थी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो करंट अकाउंट है. इसका फर्स्ट पॉइंट है, करंट अकाउंट का पहला कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या शो करता है? हमारे फॉरेन ट्रेड को, यानी हमारे डोमेस्टिक कंट्री. अगर एग्जांपल पर हम लें तो लाइक इंडिया इज आवर कंट्री, एंड इंडिया कंट्री का अन्य देशों के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो व्यापार होगा उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. ये एक फॉरेन ट्रेड, इससे हम बोलेंगे विदेशी व्यापार. इट मीन्स फॉरेन ट्रेड. सो ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. सो एक्सपोर्ट, फॉर एक्सपोर्ट वी नीड वी गेट द पेमेंट, हमको पेमेंट मिलता है फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स. अगर हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर, for the exports of goods we get the payment, and whatever payment we received which is we recorded in the credit side. जो payment हम receive करते हैं through the export, that payment we recorded in the credit side. And for the import of goods we need to pay the foreign exchange, and that we need to show in the credit side. It means the balance of these accounts, it means export and imports of goods का जो अकाउंट है होगा, उसका जो बैलेंस शो होगा उस बैलेंस को हम ट्रेड बैलेंस कहेंगे. Yes, as we have studied the economic transaction that export and import of goods are visible items, so visible items are the part of the current account. Next we are having the export and import of services. The export and import of services are invisible items. It means that are related with the export and imports of goods. यानी
ऐसी सर्विसेज जो हम लेते हैं और देते हैं और इनका लेन देन होता है, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और गुड्स का और इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, तो इनके कारण ही इन सर्विसेज का यूज होता है। जो दैट सर्विसेज आर शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। These are the main services. Shipping, banking and insurance, these are the invisible services related with the import and exports of goods. And for these services, if we pay for insurance, banking and shipping, if we pay, that payment are recorded on the debit side, and if we get these payment, that are recorded on the credit side. So this is for import and exports of services, and main services are shipping, banking and insurance. Unilateral transfer, नाम से ही पता चल रहा है, uni means single. That unilateral transfer are recorded are termed as one-side transaction, and that one-side transactions include gift, donation and personal remittance. Like in the present time, if we all are facing corona, if any foreign country can give the donation to the PM राहत कोष, अगर कोई फॉरेन कंट्री PM राहत कोष में दान दे रहा है तो उस ट्रांसफर को हम कहेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्योंकि उस फॉरेन कंट्री ने ऐसा ट्रांसफर बिना किसी सर्विसेज के दिया है। भारत ने, इंडिया ने उस विदेशी कंट्री को कोई भी किसी भी तरह का सर्विसेज नहीं दिया है, स्टिल वो PM राहत कोष में अगर दान के रूप में ऐसा मनी डाल रहा है तो वो क्या होगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर। और इसके अलावा कोई विदेश में, कोई USA में रहने वाला पर्सन कोई इंडिया में रहने वाले पर्सन की हेल्प करने के बिहाफ में अगर ऐसा कोई ट्रांसफर भेज रहा है तो हम उसे भी गिफ्ट मानेंगे, और दैट गिफ्ट ट्रांसफर इज ऑल्सो नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। अगेन, इफ वी आर गेटिंग दिस पेमेंट, if we get receipt of these payments, that receipts we record on the credit side, and if India paid that donation to any foreign country, that is recorded on the debit side. It means the whatever we pay, it is recorded on the debit side, and whatever we received, it is recorded on the credit side. So all these types of, मैंने जो तीनों पॉइंट समझाए इसमें मैंने आपको यही बात समझाई है, डेबिट और क्रेडिट साइड, क्योंकि दैट BOP अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द BOP अकाउंट इज बेस्ड ऑन two sides, that is debit and credit. That's why for export we pay the payment which is recorded on the debit side. For import for export we get the payment which is recorded on the credit side. For import we pay the payment that is recorded on the debit side. And same is for services, and same is for unilateral transfers. Yes, last we are having the income receipt and payment. मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे ध्यान देखेंगे। इनकम रिसिप्ट, इनकम जो रिसिप्ट हो रही है, एंड पेमेंट जो हम पे कर रहे हैं टू यानी किसी फॉरेन कंट्री को, एंड फ्रॉम, और अगर हमें कहीं से आ रही है फॉरेन कंट्री से यानी अब्रॉड, यानी टू एंड फ्रॉम रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और वो इनकम और रिसीप्ट साइड्स होते हैं, इनकम और पेमेंट साइड्स होते हैं। एंड all these transactions are investment transactions like rent, interest and profit. All these transactions are investment income. अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री के शेयर्स खरीदे हैं और वहाँ पर उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है, या वो जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो आपको पता है कि शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो इस तरह का प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट को आ रहा है तो वो इसमें रिकॉर्ड होगा। और अगर किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे देश की कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो हम वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, और इस तरह का जो प्रॉफिट हम पे करेंगे उसे हम कहेंगे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कहेंगे, और वो इस टर्म में आएगा। सो इस तरह से इसमें भी वही दो साइड होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। For payment we record credit debit side, and for receipt we record
ऑन क्रेडिट साइड. सो इस तरह से वी आर हैविंग द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट. सी ए जो लिखा है, C स्टैंड्स फॉर करंट, A स्टैंड्स फॉर अकाउंट. सो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, फास्ट रिकैप देख लेते हैं हम. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जैसा कि BOT में पढ़ा था हमने, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि इसी तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. यानी